Hi everyone, welcome to the class. So we are going to start today with certain important topics. आज की क्लास में हम कुछ बहुत important topics से start करने वाले हैं. And it will be, we are going to cover the water cycle today. We are going to cover clouds, its formation and its types. ठीक है? And a little bit up in the oceanography also has been left. So we are going to cover the ocean reliefs as well. Hi everybody, welcome to the class. So what are we going to cover today? We are going to cover today water in atmosphere. ठीक है? This is chapter number 11, water in atmosphere. We are going to cover this today. We are going to cover the ocean reliefs. हम ocean reliefs cover करने वाले हैं. And we are also going to cover in today's class clouds and its types. ठीक है? So these are the important topics that we are going to cover, and these topics are extremely important from the point of view of your prelims examination. आपका जो आने वाला preliminary examination है plus mains, उनके point of view से GS paper 1, these topics are very important, especially when we talk about ocean reliefs and water and atmosphere. These topics are of extreme importance. ठीक है? तो वाटर इन एटमॉस्फेयर में दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, वाटर साइकिल, एंड इन ओशन रिलीव्स दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस अबाउट फीचर्स ऑफ ओशन रिलीव्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले. क्लास शुरू करते हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, हियर इज अ स्मॉल लिटिल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, दैट अनअकैडमी हैज़ लॉन्च्ड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन करंट अफेयर्स. ठीक है? तो अनअकैडमी ने अनअकैडमी इम्पल्स के नाम से एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है करंट अफेयर्स के लिए. एंड दीज टेस्ट सीरीज विल बी कंडक्टेड थ्राइस इन दिस मंथ, ऑन 22nd of Jan, on 26th of Jan एंड ऑन 29th of Jan at 10 AM in the morning. ठीक है? तो कल और 26th को और 29th को सुबह 10 बजे ये फ्री टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट होंगी. ओके, एंड इट इज़ बाय द नेम अनअकैडमी इम्पल्स. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो टेस्ट है, वाई दिस अनअकैडमी इम्पल्स, बेसिकली इट्स अ बाई वीकली प्रैक्टिस टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. You don't have to pay anything to attend these test series, and you all know that if you are giving mock test, that is good for your brain, right? आपका ब्रेन ट्रेन होता है प्रीलिम से पहले. सो गिविंग टेस्ट सीरीज विल शार्पन अप योर अप्रोच टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, राइट? सो वट एवर recent current affairs you have studied, from there only the test will be conducted. And this test has been created by top educators Mr. प्रशांत धवन. मिस्टर प्रशांत धवन ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया है. और अगर आप टेस्ट को लाइव देते हो ना, इफ यू आर गिविंग दिस टेस्ट लाइव, यू विल बी गेटिंग योर रैंकिंग ऑल्सो, ऑल इंडिया रैंक. So you will be knowing your strength and weaknesses by giving these tests. Okay, now the test questions will be in both the language, English and Hindi, for both the medium students. So there will be 30 MCQs in the test, 60 marks, that means 2 marks each. 40 minutes time will be given to you to attempt the test. 10 AM in the morning on 22nd, on 26th and on 29th of January 2021. These tests will be conducted at 10 AM in the morning. Then after the test you will be getting analysis session also, right? That means solutions भी आपको मिलेंगे with explanation, video solutions you will be getting with explanation. Okay? And how to enroll in this test? अब इस टेस्ट में enroll कैसे करना है? So you have to go to the app store, download Unacademy's learning app, then register on the app or sign in into the app through the app also or through the website also. And you have to go to the test section. ऐप के बिल्कुल नीचे एक टेस्ट सेक्शन होता है, उस पर जाना है आपको. क्लिक ऑन द टेस्ट सेक्शन, enroll in the test series for free to take the test. टेस्ट सीरीज का नाम होगा Unacademy Impulse. That will be the name of the test, Unacademy Impulse. Then they will ask you for a code to start the free test. अब अनलॉक करने के लिए फ्री टेस्ट को एक कोड मांगेंगे आपसे. That code is Arpita 10. If you type this code, your free test will be unlocked. All the free classes on Unacademy Plus, all the mock test on Unacademy Plus, you can unlock them for free now. लर्निंग ऐप पर जाकर फ्री में आप सारे टेस्ट अनलॉक कर सकते हो यूजिंग दिस कोड Arpita 10. Okay, so I've given you the link also. Click on the link, enroll in the test. It will be conducted on 22nd, 26th and 29th of Jan at 10 AM in the morning. Okay, so this was a very wonderful announcement by Unacademy Plus. Let's start the class. Class शुरू करते हैं if everybody is ready.
So let's start with the hydrological cycle. Now when we talk about hydrological cycle, we know that hydrological cycle means continuous exchange of water between the atmosphere, between the oceans and continents, ठीक है, through different processes. That is hydrological cycle. Write it down. It is a continuous exchange of water, but exchange between what? Between the atmosphere and the water body, that is the oceans, ठीक है, and between the continents. That is the water cycle or hydrological cycle. But this continuous exchange of water, it takes place through various processes. अब ये जो continuous exchange होता है ये अलग अलग processes के थ्रू होता है. So what are those various processes? We have evaporation, ठीक है, through evaporation also. Then we have transpiration, ठीक है, transpiration भी एक process है जिसके थ्रू ये cycle exchange होता है. Then we have condensation also, ठीक है, हमारे पास condensation भी हो जाता है. And we have precipitation. So in order we have to remember it. हमको इसको order में याद रखना है. Precipitation, ठीक है. So these are the processes through which this continuous exchange of water between different, between the different sources like continents, oceans and atmospheres, it takes place. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट लेट मी नो. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस. अब इन सभी प्रोसेसेस को हम एक एक करके समझने वाले हैं. ठीक है, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया. जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं वी नो दैट द मॉइस्चर इज द की. ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो आपका की एलिमेंट है वाटर साइकिल का. सो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर. एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर आता है आपका वो कहाँ से डिराइव किया जाता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज, फ्रॉम द ओशंस. ठीक है, सभी को पता है ये बात. सो वट एवर एटमॉस्फेयर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दे कम फ्रॉम द वाटर बॉडीज, दे कम फ्रॉम द ओशंस. दिस इज द एटमॉस्फेयर. ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर. और ये वाटर बॉडीज आ रही हैं ओशन से. बट व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू विच दीज वाटर बॉडी दीज मॉइस्चर इट रीच द एटमॉस्फेयर? द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. ठीक है, so this is in short what is evaporation. It is the process through which the moisture reaches into the atmosphere. ये है आपका moisture और ये atmosphere तक पहुंचता है evaporation के through. ठीक है, and this process is evaporation and from plants. अब देखो ये तो ocean से पहुंचा moisture. This moisture is reaching the atmosphere through the oceans through evaporation. But there are plants also. Plants भी होते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स के थ्रू भी वाटर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाता है. ठीक है, थ्रू प्लांट्स ऑल्सो द मॉइस्चर रीचेस द एटमॉस्फेयर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन. राइट इट डाउन. इट इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द करेक्ट टर्म्स. आपको सही टर्म्स याद रखने हैं बिल्कुल. इट इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस थ्रू विच द मॉइस्चर रीचेस फ्रॉम द प्लांट्स to the atmosphere is evapotranspiration. Am I clear? So two processes we have so far studied. Now coming towards condensation. अब देखो ये जो evaporated water है ना, moisture है, this moisture which has evaporated and reached the atmosphere, now it undergoes condensation. अब ये condensation के process में घुसेगा. ठीक है, and through condensation it gets converted into clouds. कंडेंसेशन के थ्रू ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है. द मॉइस्चर इट रीचेस फ्रॉम द ओशन टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन, फ्रॉम द प्लांट्स टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोट्रांसपिरेशन, देन इट कंडेंसेस. आफ्टर कंडेंसेशन इट फॉर्म्स क्लाउड्स. कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बन जाता है. ठीक है, तो इवेपोरेटेड वाटर बिकम्स क्लाउड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. नाउ व्हेन देयर इज अ सैचुरेशन लेवल विच इज रीच्ड, जब एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है आपका, ठीक है, आफ्टर दैट सैचुरेशन लेवल द क्लाउड्स दे गिव अवे वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. अब देखते हो जब ये भारी हो जाते हैं क्लाउड्स, व्हेन दे नो लॉन्गर कैन होल्ड मॉइस्चर देन दे ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन में क्या होता है? थ्रू प्रेसिपिटेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ precipitation, ठीक है, they fall down in the form of rain.
फिर बारिश होती है तो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू बारिश के फॉर्म में मॉइस्चर वापस से नीचे आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इफ आई एम क्लियर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पॉइंट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो आई विल शो यू द वाटर साइकिल डायग्राम एज वेल, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। एवरीबडी कैन सी दिस। सो दिस इज द वाटर साइकिल डायग्राम। अब इधर देखोगे आप दैट इवेपोरेशन इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है, फ्रॉम द ओशन the moisture is going above in the atmosphere through evaporation. Then from the plants the moisture is going above through the process of evapotranspiration. Then it condenses and becomes cloud, and then when it can no longer hold the moisture through precipitation in the form of rain, the moisture comes down on the land. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका बेसिक वाटर साइकिल। दिस इज योर बेसिक वाटर साइकिल। दिस एंटायर प्रोसेस इज द बेसिक वाटर साइकिल। ठीक है, ये आपका पूरा जो डायग्राम है आप देख सकते हो, दैट इज बेसिक वाटर साइकिल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, वाटर वेपर की बात करते हैं। देखो, जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर वेपर, ठीक है, इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट परमानेंट। ना तो ये परमानेंट है ना ये सेम है। वाटर वेपर इट वेरीज, आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट, ठीक है, एंड इट वेरीज फ्रॉम, राइट इट डाउन, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% by volume. So its volume is also not static, its volume is also not same, it varies or it differs from 0 to 4% by volume, ठीक है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, write it down, the amount of the water vapor, it is known as humidity. Amount of water vapor is known as humidity. This is the basic definition of water vapor. ये आपके water vapor का बहुत basic definition है। So humidity is the amount of water vapor, ठीक है। Now it is measured also. How can you know that it varies from 0 to 4%? Because it is measured, and it is measured by a very important instrument. Write it down. It is measured by a very important instrument which is known as hygrometer. This is important for your prelims, ठीक है। इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा सभी को। This is very important for prelims. Write it down. Hygrometer is the instrument which measures the amount of water vapor. Now the next important question from the perspective of mains. अब मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। राइट इट डाउन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Now there are three basic importance of the atmospheric moisture. Atmospheric moisture के तीन significant reasons होते हैं. So first significant reason is known as that, see, water vapor जो होता है, water vapor is the amount of moisture, ठीक है, water vapor जो है moisture का amount है, ठीक है। So water vapor it absorbs radiation, ठीक है, write it down, water vapor. And what is radiation? In the last class we have studied about radiation also. It is the solar energy that is being received by earth, that is radiation. जो भैया solar energy sun से आ रही है और earth receive करती है, वही तो radiation है, ठीक है। So over here you will write that the water vapor, we studied this in the last class also, dust particles, water vapor, they absorb the radiation. So water vapor absorbs the रेडिएशन। वाटर वेपर क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एंड विच रेडिएशन, इनकमिंग और आउटगोइंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रिवाइजिंग द क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है। वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स बोथ टाइप ऑफ रेडिएशन, इनकमिंग ऑल्सो, आउटगोइंग ऑल्सो। कल तो पूरा डायग्राम के थ्रू समझा था, येस और नो। So water vapor absorbs radiation both incoming and outgoing. Terrestrial radiation also, outgoing is the terrestrial radiation that we studied in the last class, and the incoming radiation also, right? So it plays a very crucial role. It plays a very important role, a very important role in the heat budget.
हमने कल हीट बजट पढ़ा था विद स्पेसिफिक डायग्राम। तो हीट बजट में वाटर वेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हीट बजट, अर्थ्स हीट बजट। फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये हो गया। एंड वी ऑल नो दैट अर्थ्स हीट बजट इफ इट इज बैलेंस्ड देन द क्लाइमेट चेंज विल नॉट affect the species on living on earth, but if the heat budget is imbalanced it can become either too cold or too warm, which is not good for the survival of the species on the earth, not just human species but every living species. Okay, now the second important significance of water vapor is that the amount of water vapor, write it down, the amount of water vapor which is present in our atmosphere, which is present, it decides the quantity of latent energy, the quantity of latent energy. अब what is this latent energy? The meaning of the word latent means hidden. इस word का जो मतलब होता है उसका मतलब है hidden, ठीक है। Now latent energy is found in the water vapor also, it is found in the dust particles also. वो energy जो दिखती नहीं है but hidden है, the energy which cannot be seen but it is hidden, ठीक है। So latent energy, it decides the quantity of latent energy which is stored up in the atmosphere, for the development of storms and cyclones. तो आपके जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर आप लेटेंट एनर्जी बिल्कुल हाई क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो लेटेंट एनर्जी कैन बी सीन इन हाई क्वांटिटी नियर द कोस्टल रीजन्स एंड इट इज स्टोर्ड अप, इट कैन नॉट बी सीन एंड इट इज स्टोर्ड अप इन दी वाटर वेपर। आपके वाटर वेपर में ये लेटेंट एनर्जी पाई जाती है। ऑल द सोलर रेडिएशन दैट द वाटर वेपर इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेटेंट एनर्जी, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। वी कैन जस्ट मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बट वी कैन नॉट एक्चुअली सी द लेटेंट एनर्जी स्टोर्ड अप इन द वाटर वेपर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंस। जितनी भी साइक्लोन्स, ऑल द आपके स्टॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड इन द कोस्टल एनर्जी, दैट इज वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज साइक्लोन्स एंड दी स्टॉर्म्स. Now coming towards the third basic significance of water vapor. We all know that this atmospheric moisture, it affects the human body's rate also of cooling by influencing the sensible temperature. अब देखो ये जो water vapor है, atmospheric moisture है, which includes water vapor also. This atmospheric moisture also decides the warmness or the coolness of a place. Yes or no? जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो डिसाइड करता है कि एरिया ड्राई रहेगा या एरिया आपका कूल रहेगा, राइट। द ड्राइनेस ऑफ द एरिया, द कूलनेस, द वार्मथ ऑफ द एरिया, इट इज डिवाइडेड बाय द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट। आपका टेम्परेचर ड्राई भी रह सकता है अगर मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर ज़्यादा है तो रेनी सीजन रहेगा उस एरिया में, रेन्स रहेंगी उस एरिया में, राइट। सो ओवर हियर यू कैन राइट दैट द एटमॉस्फेरिक moisture, it affects the human body's rate of cooling by influencing the sensible temperature of the area. That is why in the Himalayan region the sensible temperature is different, so the human body's rate of cooling down is also different as compared to the area of Rajasthan. Okay, influencing the sensible temperature. तो ये आपके 3 major significant points हैं atmospheric moisture के. These are the reasons, 3 significant reasons of atmospheric moisture. I hope you all have noted this down and understood it. सबने understood कर लिया है इसको अच्छे से. Okay. Now we have understood different process through which this water vapor it goes into the atmosphere. हमने अलग अलग process पढ़े थे जिसके थ्रू ये water vapor atmosphere में जाता है, ठीक है। Now over here the first important process is, यहाँ पर पहला important process जो कि oceans के थ्रू है वो कौन सा है? Let me know in the comment section. The first important process of water vapor settling down in the atmosphere through the oceans is known as, yes Rohini, very good, it is evaporation. वो process है आपका पहला evaporation.
ठीक है, इट हैपन्स थ्रू द ओशंस। नाउ हमको पता है कि अगर ओशंस के बारे में हम पढ़ें, इफ वी स्टडी अबाउट द ओशंस, 71% ऑफ अर्थ्स एरिया इज कवर्ड बाय ओशन। ठीक है, आपको पता है द ओशंस दे कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड दे होल्ड 97%, राइट इट डाउन, दे ऑल्सो होल्ड 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर रिजर्व्स। अर्थ के जो टोटल वाटर रिजर्व्स हैं उनका 97% कहाँ पर होल्ड है? ओशंस में होल्ड होता है। दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन इज व्हेन द ओशनिक वाटर, नाउ द सरफेस वाटर, नॉट द डीप डाउन वाटर, द सरफेस वाटर व्हेन इट गेट्स हीटेड अप, ठीक है, जब ये हीट अप होने लगता है, इट राइजेस इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अबव in the vertical manner and get stored in the atmosphere। तो होता क्या है, जब surface water आपका heat up होता है because of the continuous sun rays falling on the surface water, it gets heated up, and after getting heated up, it vertically moves up in form of water vapor and gets stored in the atmosphere। This is the atmosphere। This water vapor moves up, it gets collected into the atmosphere, and this water vapor also scatters the sun rays। ये जो water vapor है ना, ये sun rays को scatter भी करता है। It also absorbs the radiation which is going up and which is coming in। दोनों ही प्रकार की radiation ये absorb करता है। ठीक है, so this is a very important process in the साइकिल ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अगर कोई प्रोसेस है तो वो इवेपोरेशन है। ठीक है, नाउ ह्यूमिडिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर साइकिल। सो व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताएं कि आपको क्या लगता है ले मैन की टर्म में, एक इन अ ले मैन्स टर्म, हाउ विल यू डिफाइन ह्यूमिडिटी? कैसे डिफाइन करोगे ह्यूमिडिटी को? येस, इट विल बी वाटर इन द एयर, वेरी गुड। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर। सो ओवर हियर ह्यूमिडिटी इज, राइट इट डाउन, इट इज द वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और यहाँ पर हमने ये पढ़ा भी था, पर हियर वी स्टडीड ऑल्सो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ह्यूमिडिटी विच इज मेजर्ड थ्रू हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो फोकस इन द क्लास, फटाफट से फोकस बढ़ाओ क्लास में। सो दैट इज ह्यूमिडिटी, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। यहाँ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ह्यूमिडिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो क्या है? So there are two basic types of humidity. First is known as absolute humidity. पहले टाइप को हम बोलते हैं absolute humidity, ठीक है? And second is known as relative humidity, जहाँ पर absolute word है, दूसरा word तो relative ही आएगा, ठीक है? So we have absolute and we have relative. These are the two basic types of humidity. Now absolute humidity क्या है? It is, write it down, the actual amount of water vapor। WV means water vapor, ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ water vapor। So the actual amount of water vapor which is present in the atmosphere, that is known as the absolute humidity। यानी कि जो बिल्कुल करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल रियल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो होगा आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, हम ये भी बोल सकते हैं, वी कैन गिव इट अनदर डेफिनेशन। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का एक और डेफिनेशन हो सकता है, एंड दैट कैन बी द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, दिस इज द you can say formula related definition of absolute water vapor, कि वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, पर यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ एयर। एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर जो है उसके हिसाब से जो वेट है वाटर वेपर का, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगा। ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट यूनिट? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। दे कैन गिव यू टू स्टेटमेंट्स ऑन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन दे विल आस्क यू विच वन इज इनकरेक्ट और विच वन इज करेक्ट।
ठीक है। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दे देंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, फिर आपसे पूछेंगे कि भैया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नाउ जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज नॉट सेम इन ऑल द रीजन्स। ऐसा नहीं होता कि हर रीजन में सेम है, इट इज डिफरेंट इन कोस्टल रीजन, इट इज डिफरेंट इन कॉन्टिनेंटल रीजन, इट इज डिफरेंट इन डेजर्ट रीजन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडी इट डिपेंड्स, वाटर बॉडी के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है कितना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा। देन वी टॉक अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। सो ओवर हियर यू कैन अगेन राइट डाउन दिस डेफिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बट इट सेज रिलेटिव, यानी कि कंपैरिजन है। व्हेन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रिलेटिव, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग, ठीक है। देखो वैसे भी रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन ही होगा, रिश्तेदार तो हमेशा कंपेयर करते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू और कंपैरिजन, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर्ड to its full capacity, as compared to its full capacity at a given temperature. So in a particular temperature, what could have been the actual percentage of moisture in the atmosphere and what in present it is? The comparison, it is relative humidity. इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो होना चाहिए था परसेंटेज मॉइस्चर का एटमॉस्फेयर में, उसके कंपैरिजन में अभी कितना है, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो यू कैन ऑल्सो राइट ओवर हियर, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, एयर में जो है, विच इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, दिस होल इज डिवाइडेड बाय द ह्यूमिडिटी, डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि अभी कितना है, राइट नाउ व्हाट इज इट, ठीक है, humidity at saturation point, which is also the maximum amount of water vapor that the air can hold into 100, ठीक है। So relative humidity is absolute humidity divided by the humidity which right now the air is holding into 100, and it is expressed in terms of percentage because it is into 100 ना, जो भी चीज into 100 हो जाती है वो percentage के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। So it is expressed in percentage and absolute humidity is expressed in ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ये पॉइंट याद रहेगा सबको। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय द करंट ह्यूमिडिटी इनटू 100, दैट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए आई हैव टेकन वन इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द PYQs फ्रॉम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इट केम इन द ईयर 2011। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज ग्रेटर ओवर द ओशंस, ओशंस यानी कि समुद्रों के ऊपर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होती है, एंड इट इज लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉमन सेंस ऑल्सो, ये तो कॉमन सेंस से भी आपको पता रहेगा कि ओशंस के ऊपर ऑब्वियसली द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर विल बी ह्यूज, ठीक है, बट ओवर द कॉन्टिनेंट्स और द डेजर्ट्स और द लैंड एरिया द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर विल बी लेस, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर ओवर ओशंस बिकॉज ऑफ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इवेपोरेशन। ओशंस के ऊपर आपका रेलेटिविटी जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वो क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि पानी ज्यादा है ना, तो इवेपोरेशन जब होगा तो मॉइस्चर भी ज्यादा आएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? इफ दिस इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कैन रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज? क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो सकता है? व्हाट कैन बी द आंसर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैन इट बी चेंज्ड? यस, वेरी गुड, इट कैन बी चेंज्ड। व्हाई इट कैन बी चेंज्ड? क्यों चेंज हो सकता है? देयर आर टू वेज विच इट कैन बी चेंज, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? So over here you can see that relative humidity
ह्यूमिडिटी, इट कैन बी चेंज्ड, इसको बदला जा सकता है, बट देर आर टू मेजर प्रोसेसेस थ्रू विच इट कैन बी चेंज्ड। इसमें दो प्रोसेसेस हैं जिस प्रोसेस के थ्रू इसको चेंज किया जा सकता है। व्हाट आर द टू प्रोसेसेस और व्हाट आर द टू वेज, कौन से दो तरीके हैं जिससे इसको चेंज कर सकते हो। फर्स्ट वे इज नोन एज, it is said that you can change it by increasing absolute humidity, because you are counting it, you are calculating it in terms of absolute humidity ना, तो अगर यही बढ़ जाएगा आपका तो चेंज हो जाएगा relative humidity. So by increasing absolute humidity, or in simple languages you can say by adding moisture in the air, by adding moisture through evaporation. ठीक है, मॉइस्चर को ऐड करोगे आप एटमॉस्फेयर में तो रिलेटिव जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो तो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, सो इफ मॉइस्चर इज एडेड बाय इवेपोरेशन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, इफ यू रिमूव द मॉइस्चर इट विल डिक्रीज। नाउ द सेकेंड वे इज, व्हाट इज द सेकेंड वे? सेकेंड वे इज बाय चेंजिंग द सैचुरेशन पॉइंट। राइट इट डाउन, बाय चेंजिंग द सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहां पर परफेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एक एयर होल्ड कर सकती है, केपेबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड द मॉइस्चर, इफ यू चेंज दैट देन ऑल्सो यू कैन चेंज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, यहां हमने पढ़ा था। इन दोनों में से किसी में भी चेंज लाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ यू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू relative humidity will automatically change. So this can be done by decreasing the moisture holding capacity of the air. ठीक है, by decreasing the moisture holding capacity, the moisture holding capacity, ठीक है, of the air, of the atmosphere, it will cause an increase in humidity. तो relative humidity आपकी बदल जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो ये हो गया आपका relative humidity में चेंजेस लाने के दो तरीके। ये आपको मेंस के लिए याद रखना है। रिमेंबर दिस फॉर जीएस पेपर 1 एंड इवन फॉर प्रीलिम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस तो अब ये पूछ ही रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पर ड्यू पॉइंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है। दिस इज यूपीएससी फेवरेट टॉपिक, ड्यू पॉइंट। सो व्हाट इज दिस ड्यू पॉइंट? Now we all know that the temperature at which the saturation occurs, it is known as dew point. यानी कि saturation मतलब अब इससे ज़्यादा जो हवा है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता। saturation point means now beyond this level the atmosphere cannot hold the moisture. That is your dew point. ठीक है, उसको हम dew point बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो that the temperature, ठीक है, the temperature at which the saturation occurs, ठीक है, the saturation occurs in a given period of time is known as dew point. इसको हम dew point बोलते हैं। And when we shorten this definition, जब हम इस definition को भी छोटा करेंगे, we'll see that dew point is equal to, or dew point occurs when your relative humidity is equal to 100%. This is another short definition of dew point. जब आपकी relative in terms of relative humidity when it is 100%, जब आपकी relative humidity 100% हो गई तो उस टाइम पर हम बोलेंगे this is the dew point. Now beyond this level the atmosphere is unable to hold any further moisture. इस पॉइंट के बाद अब एटमॉस्फेयर आपका मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा, that is dew point. ठीक है, फुल कैपेसिटी यानी कि द एटमॉस्फेयर हैज रीच्ड, राइट इट डाउन, द एटमॉस्फेयर हैज रीच्ड फुल कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी हो गई। अब इससे ज़्यादा हम कोई भी मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसके आगे तो बारिश ही होगी और कुछ नहीं। ठीक है, ड्यू पॉइंट समझ आ गया सभी को? नाउ आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है एंड दैट टर्म इज नोन एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी। ये टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी में नहीं आता। टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी इज टू ओनली, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। ये क्या है? ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। ठीक है, अ वे टू एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी। सो राइट इट डाउन दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द वेट
as the weight of water vapor, WV means water vapor, per unit weight of air, per unit weight of air, that is specific humidity. Water vapor expressed per unit weight of air, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. एंड इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ वेट. इसका यूनिट क्या है मेजर करने का, ये वेट के टर्म्स में मेजर होता है. सो इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ वेट विच इज यूजुअली ग्राम्स पर किलोग्राम. ये इसका मेजर है, इट इज ग्राम्स per kilogram. So specific humidity is not affected by the change in pressure or change in temperature. Another important point, it is not affected by change in temperature or change in pressure. वेट, ये तो वेट के यूनिट में मेजर होता है. एयर का पर यूनिट वेट जितना होगा उस मेजर में इसको हम वे करेंगे, राइट. तो टेम्परेचर में या प्रेशर में अगर कोई चेंज होता है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर. दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी नो दैट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर वेरिएबल. ठीक है, आपने यहाँ पर पढ़ा था ना दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी चेंज्ड. ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैन बी चेंज्ड. सो दे आर वेरिएबल. ये दोनों तो आपके वेरिएबल हो गए. ठीक है, दे कैन बी चेंज्ड. बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट. ये चेंज नहीं होता. सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक डिफरेंस फॉर प्रीलिम्स. ये आपको बेसिक डिफरेंस प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया है तो मुझे फटाफट से बता दो. इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. नाउ वी हैव कवर्ड वाटर इन द एटमॉस्फेयर. हमने बेसिक पार्ट जो है वाटर इन एटमॉस्फेयर का वो कवर कर लिया. दिस आई एम टीचिंग फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी. ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना, हम उसमें से पढ़ रहे हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 11 दैट वी हैव स्टडीड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लाउड्स, बिकॉज क्लाउड्स दे आर अ पार्ट ऑफ योर वाटर साइकिल. क्लाउड्स जो होते हैं आपके वाटर साइकिल का ही पार्ट होते हैं ना, येस और नो. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इट हैपेंस इन द वाटर साइकिल ओनली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं. ऑल्सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बिकॉज देर आर न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास ज्वाइनिंग अस, so here's a small announcement that Unacademy, it has launched Unacademy Impulse, which is a free test series for the current affairs. आपके current affairs के लिए ये free test series है. that will start from 22nd Jan, then it will be conducted on 26th and 29th Jan 10 AM in the morning. सुबह 10 बजे 22, 26 और 29th Jan को ये conduct होगा. ठीक है, एंड इन दिस टेस्ट सीरीज यू विल बी गेटिंग, कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल इस टेस्ट सीरीज में? इन दिस टेस्ट सीरीज देयर विल बी अराउंड 30 क्वेश्चंस. ठीक है, आपके 30 MCQs होंगे एंड 2 मार्क्स ईच. सो 60 मार्क्स का पेपर होगा फ्री टेस्ट. ओके, बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, जो करंट इवेंट्स हैं उसी पे होगा. 40 मिनट्स टाइम विल बी गिवन टू यू. सो फ्रॉम 10 AM टिल 10:40 AM इट विल बी कंडक्टेड. ठीक है, कल आपका पहला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे. ठीक है, येस, नेगेटिव मार्किंग 0.66 मार्क्स की होगी. ठीक है, एंड देन आफ्टर द टेस्ट यू विल बी गेटिंग योर ऑल इंडिया रैंक. आपको आपका ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा. ठीक है, इफ यू टेक द टेस्ट लाइव, अगर आप लाइव टेस्ट दे रहे हो. सो गो टू द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, इनरोल इन द टेस्ट बाय गोइंग इन टू द टेस्ट सेक्शन. इसका नाम है अनअकैडमी इम्पल्स. ठीक है, और यहाँ पर कोड यूज करना है अर्पिता 10 टू गिव दिस टेस्ट फॉर फ्री. तो अभी आपके लेटेस्ट कुछ महीनों में, लेटेस्ट 2-3 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर होंगे इस टेस्ट सीरीज में, और ये हर बार टेस्ट होता रहेगा. ठीक है, दिस टेस्ट विल टेक प्लेस ऑन 22nd, 26th एंड 29th ऑफ जैन. तो ये हर बार हर महीने इसी डेट्स पे होगा. आपको इसको लाइव देना है. ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कंप्लीट योर करंट अफेयर्स रिवीजन, गिव दिस टेस्ट. ओके, एंड यूज दिस कोड टू अनलॉक इट फॉर फ्री. फ्री में इसको अनलॉक करने के लिए ये कोड यूज करना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इफ यू वांट टू अनलॉक और वॉच एनी क्लास फॉर फ्री, एनी टेस्ट इफ यू वांट टू गिव इट फॉर फ्री, यूज दिस कोड. इस कोड को यूज कर लीजिए. आप कोई भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, कोई भी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो ये कोड यूज करके. ठीक है, so if you want to take free coaching, Arpita 10 is the code. ठीक है, and I have also pinned the link of this Unacademy Impulse. Okay, so when we talk about clouds, जब हम clouds की बात करते हैं, what is a cloud? Cloud है क्या? When the water vapor condenses, it becomes cloud. This is the basic definition. जब water vapor condense होता है तो वो क्या बन जाता है? Cloud बन जाता है.
ठीक है। सो इट्स अ विजिबल मास ऑफ वेरी माइन्यूट लिक्विड ड्रॉपलेट्स विच यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई। आप अपनी नेकेड आई से उन माइन्यूट ड्रॉपलेट्स को नहीं देख सकते, विच इवेपोरेट अपवर्ड्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो दीज आर द पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स विच आर सस्पेंडेड इनटू द एटमॉस्फेयर विच फॉर्म्स क्लाउड्स व्हेन दे कंडेंसेस। जब कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं, तो क्लाउड बन जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू द प्रेसिपिटेशन, बिकॉज व्हेन दे गेट हैवी दे फॉल डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। ये वाटर वेपर वापस अर्थ पे आते हैं रेन बनकर, ठीक है। सो यू कैन से दैट क्लाउड इज द accumulation of grouping of tiny water droplets and ice crystals that are suspended in the earth's atmosphere. But this is the basic definition. Here we have to study different types of clouds. यहाँ पर हमें अलग अलग types भी पढ़ने हैं clouds के. So what are the different types of clouds? They can be classified on the base of shape and altitude. Altitude means height. Altitude का मतलब क्या होता है? Height होता है ना. तो on the basis of height and on the basis of their shape, their form, they can be divided into two parts. Now on the basis of shape, they are three types of clouds. Shape के basis पे तीन तरीके के clouds होते हैं. First is the cirrus cloud. ठीक है, पहला होता है आपका cirrus cloud. This is the cirrus cloud. You must have seen these kind of clouds. आपने जरूर देखा होगा इन तरीके के clouds को. These are very thin and in a very linear form. एक तरीके का linear form होता है इनका. So these are the cirrus clouds. ठीक है. Then we have cumulus cloud. Cumulus cloud जो होते हैं, these are the cumulus clouds. थिक पफी क्लाउड्स, बिल्कुल ग्लोब्यूल जैसे क्लाउड्स जो होते हैं वो आपके क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं. दीज आर द क्यूमुलस क्लाउड्स. एंड देन वी हैव स्ट्रैटस क्लाउड्स. दीज आर शीट्स लाइक क्लाउड्स. आप देखते होगे थिन लेयर ऑफ शीट ऑफ क्लाउड्स, दे यू नो समटाइम्स दे गेट स्प्रेड इन द एयर, दैट इज स्ट्रैटस. तो स्ट्रैटस इज शीट लाइक क्लाउड्स, देन सिरस इज थिन लीनियर क्लाउड्स एंड क्यूमुलस इज यू नो ग्लोब्यूल लाइक क्लाउड्स, पफी कॉटन जैसे लगते हैं आसमान में. That is cumulus clouds. Okay, so this is the classification of clouds on the basis of shape. ये तो shape के base पे हो गया. Now they are also classified on the basis of altitude. That means height. So there are high clouds, we have middle clouds and low clouds. High, middle, low. ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हाई क्लाउड्स में कौन कौन से क्लाउड्स हैं. देखो सिरस क्लाउड्स दे आर अ पार्ट ऑफ हाई क्लाउड्स ऑल्सो. सिरस क्लाउड्स जो होते हैं ना ये हाई क्लाउड्स का पार्ट होते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर फाउंड एट अ हाइट ग्रेटर दैन 20,000 फीट. हाई क्लाउड्स में आता है आपका सिरस क्लाउड्स. दे आर मेड अप ऑफ आइस एंड दे इंडिकेट फेयर वेदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ वेदर इफ वी सी सिरस क्लाउड्स? मान लो आसमान में सिरस क्लाउड्स हैं, इसका मतलब क्या है? दैट देयर विल बी नो रेन. अभी बारिश नहीं होने वाली है. सिरस क्लाउड्स दे डू नॉट रिजल्ट इन रेन. दैट इंडिकेट्स अ गुड वेदर, फेयर वेदर है, गुड वेदर है, अच्छा वेदर है. ठीक है. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज मिडल क्लाउड्स. अब आप मिडल क्लाउड्स में देखोगे तो द स्ट्रैटस क्लाउड्स दे आर अ पार्ट ऑफ मिडल क्लाउड्स. स्ट्रैटस क्लाउड्स जो होते हैं ये मिडल क्लाउड्स का एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, तो मिडल क्लाउड्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वी हैव altostratus and we have altostratus, stimulus. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर altostratus होता है और altocumulus होता है. ये दो जो क्लाउड्स है ये आपके मिडल क्लाउड्स का पार्ट होते हैं. तो यहाँ जो आप क्यूमुलस क्लाउड भी देख रहे हो ना, ये भी आपका मिडल क्लाउड का ही पार्ट है. ठीक है, सिरस इज अ पार्ट ऑफ हाई क्लाउड, altostratus एंड altocumulus दे आर पार्ट ऑफ मिडल क्लाउड्स. नाउ व्हाट इज द इंडिकेशन? अब इसमें इंडिकेशन क्या है? सी, the indication of these kind of clouds is that they will produce वर्गा. ठीक है, बारिश होगी नहीं होगी ये सिरस क्लाउड्स में पता चलता है. यहाँ मिडिल क्लाउड्स में क्या होता है? दे प्रोड्यूस वर्गा. व्हाट इज वर्गा? इट इज अ रेन और स्नो that does not reach the ground. Sometimes you may have observed that rain is happening, but the droplets are so fine that it does not even reach your hands. आपके हाथों में भी नहीं आते हैं. दिखता है कि हाँ आसमान से पानी तो बरस रहा है, बट वो इतना थिन है, इतना माइन्यूट है कि हाथ तक पहुंचता नहीं है. आप गीले नहीं होगे, यू विल नॉट गेट वेट. ठीक है, ऐसी बारिश भी होती है ना, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है जिसमें आप भीगते नहीं हो. ठीक है, आराम से बाहर जा सकते हो विदाउट एनी अम्ब्रेला. राइट, दैट इज वर्गा. उसको हम वर्गा बोलते हैं. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिडिल क्लाउड्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द ऑल्टो क्लाउड्स. इनको हम ऑल्टो क्लाउड्स भी बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर. अब आती है लो क्लाउड्स. भाई लो क्लाउड्स तो वो क्लाउड्स हैं जिनसे बारिश हो जाती है. ठीक है, सो लो क्लाउड्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटस क्लाउड्स. दे आर डेंस, डार्क एंड दे आर रेनी.
ठीक है, तो जितने भी आप लो क्लाउड्स देखते हो वहां से देयर आर प्रोबेबिलिटी दैट रेन विल हैपन। ओके, तो लो क्लाउड्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यस, घने बादल भी बोल सकते हैं हम इनको। तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव स्ट्रैटोक्यूमुलस, वी हैव स्ट्रैटस एंड वी हैव निम्बोस्ट्रैटस। ठीक है, तो ये हो गए आपके लो क्लाउड्स। सो आई विल शो यू द इमेज ऑफ द क्लाउड्स। सब देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज, ये जो लेवल है ऑल्टोस्ट्रैटस एंड ऑल्टोक्यूमुलस, इट इज अ लो क्लाउड और मिडिल क्लाउड और हाई क्लाउड। जल्दी से बताओ, क्या ये मिडिल क्लाउड है, लो है या हाई है? इज इट मिडिल, लो और हाई? यस, वेरी गुड अश्विनी, इट इज मिडिल। These are middle clouds and will rain occur, heavy rain will occur over here। क्या यहाँ पर बिल्कुल heavy बारिश होने वाली है? नहीं, it will produce वर्गा। वर्गा means rain which does not even touch the earth। वो बारिश जो कि अर्थ को छूती भी नहीं है, so light। okay, then this is high cloud, middle और low cloud। जल्दी से बताओ, ये high है, middle है कि low है? it is high। तो rain will happen over here। क्या यहाँ पर बारिश होगी? heavy rain will happen? no, it shows good weather, fair weather। यहाँ पर तो भैया अच्छा खासा मौसम होता है। ठीक है, and these are low clouds। ये है low clouds and here we see rain, thunderstorm। यहाँ पर आप देखते हो कि बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। तो ये आपका एरिया low clouds का है। this is the middle cloud region, this is the high cloud region। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Please let me know if this much is clear। Okay, clear है? चलो, so we are wrapping up this session now। ठीक है, thank you everyone for participating in the class।